हेलो गाइस, क्या हाल चाल सभी के यार। वेलकम टू साइस्त्रा। एंड पेपर तुम्हारा आज डिस्कस होने वाला है IAT 2023, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे थे। बहुत आसान पेपर था यार, काफ़ी ज़्यादा आसान। क्यों कहूँगा आसान? पहली बात तो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल आया ही नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया। समझ रहे हो? तो जिनका फिजिकल केमिस्ट्री में था ना कि सर माय फिजिकल केमिस्ट्री इज क्वाइट वीक, आई एम नॉट एबल टू रिलेट द प्रॉब्लम्स, तो इसमें तो नहीं आया एटलीस्ट। बाकी फिजिक्स में तो नहीं बच सकते न्यूमेरिकल से, बट केमिस्ट्री का तो सेक्शन ऐसा है कि उसमें तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल नहीं आया। ठीक है। हाउ मेनी रेडियल नोड्स डज कैल्शियम प्लस हैव इट इट्स इन इट्स फोर s orbital? So let's start from the first question itself. Yeah, by the way, this official answer key, you can find this official answer key in the IAT's official website, and uh, they have mentioned that in these in these slides the answer is the option number A. Basically they have arranged the option in such a way that the correct answer is your option number A. Okay, they haven't given you some answer sheet separately, but they have mentioned it that correct answer in every question is option number A, right? So how many radial nodes does calcium plus have in its 4s orbital? So you know that radial nodes radial nodes has a formula of n minus l minus 1. Now for 4s, n is equals to 4. For s, l is equals to 0. So you will get what? N minus 0 minus 1, so you will get 3. Means 4 minus 0 minus 1, you will get 3. So 3 is your correct answer. Clear? Now moving to the next. O2, N2, F2 and B2, which will be attracted towards external magnetic field. So देखो, जो external magnetic field में attract होने वाले होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जो नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होते हैं, जो रिपेल करते हैं। तो आपको बताना है बेसिकली पैरामैग्नेटिक कौन है। देखो, O2, इस बार जब MOT हम डिस्कस कर रहे थे, दिस टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग MOT, आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली दैट या this year there is a fair chance that your examiner is going to ask you some little advanced concepts related to MOT, because earlier they have just given you the glimpses of it, right? So हमने prediction की थी कि MOT का तो क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैंने आपको सबके ओमो डायटोमिक कराए थे जिनमें SP मिक्सिंग थी और जिसमें नहीं थी सबकी। तो हमने O2, N2, F2, B2 सबके किए थे, और मैंने तुमसे कहा था कि इन सब में जो 1s और 2s के कॉम्बिनेशन से 1s सिग्मा स्टार बनते हैं और 2s सिग्मा स्टार बनते हैं, इनको बॉन्डिंग में मत काउंट किया करो, क्योंकि ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो हम क्या करेंगे, सीधा O2, F2, N2 और B2 का जो एक्टिव एमओ डायग्राम का जो पार्ट है वो बनाएंगे, यानी कि 2p ऑर्बिटल वाला। तो 2p ऑर्बिटल से जो बनता है वो क्या बनता है, O2 और F2 में जिसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, इन दीज टू स्पीशीज द जनरल एमओ डायग्राम of actually this looks like your sigma star to pz sigma star, and then you have your pi star, and then you have your pi sorry, not pi star, pi x and y, and then you have your pi star obviously, and then you have your sigma star. The same pattern will be repeated for chlorine as well, right? Because in both of them there is no sp mixing, but in N2, B2, C2, I told you that the energy of these two ground orbital is actually reversed. Your pi comes first, then sigma, then your pi star, and then sigma star. So this is your pi, this is your sigma, this is your pi star, this is your sigma star, right? And similar pattern for B2 also. Now what you have to do, you have to fill the electrons. So it has 16 electrons as a whole, right? Oxygen, O2, and this has 18 electrons as a whole, this has 14, and this has 10 electrons. Now in 1s and 2s of each of them, you have filled already 8 electrons. So 8 electrons तो सब में भर दिए already. अब 8 के अलावा जितने बचे वो फिल करने हैं यहाँ पर इन स्केलेटन्स में। तो यानी कि अब देखो, 8 यहाँ पर बच गए, 16 में से 8 बच गए, तो 8 यहाँ भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी आपको कितने भरने हैं, 10 भरने हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 10। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा इस तरह भर गया। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन से 2 कम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 10, यहाँ पर 8 ऑलरेडी भर दिए 1s और 2s कॉम्बिनेशन में मिला के, और बचे कितने, दो, दो दो यहाँ भर दिए हमने।
अब देखो जिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही पैरामैग्नेटिक होगा और वही वो जो है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, तो O2 और B2, तो आंसर आ गया O2 और B2। क्लियर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पीपीपी बॉन्ड एंगल, ये भी मैंने क्लास में बताया था डायरेक्टली। कितनी तुम्हारी अच्छी किस्मत है ना, इस बार जो जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसमें से 90% रिपीट हो गया। 60 डिग्री बताया था इसमें P4 में, है ना, तो आपका आंसर 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री सबसे जो आपका रिएक्टिव एलोट्रोप होता है आपका उसमें बनता है, P4 टेट्राहेड्रा बनता है जिसमें, है ना। तो ये क्लियर हो गया, आंसर नंबर 60 डिग्री इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, ये भी क्लास में साइड राइट सारे और कुछ कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे सबके, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है ना। और मेलेकाइट जो होता है वो मेरे ख्याल से होता है कॉपर का। और जो क्वार्ट्ज होता है वो सिलिकॉन का होता है ना। सिडराइट जो होता है वो आयरन का होता है। फेरोन, क्या आयरन लिख रहा था, फेरोन लिख दिया। आयरन, आयरन का होता है। और क्योंकि इसके बारे में पूछा है तो सिडराइट जो होता है वो आयरन कार्बोनेट होता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो अगला, विच पैरामीटर्स आर प्लॉटेड इन एलिंगम डायग्राम, अगेन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हल्का सा आइडिया होगा। एलिंगम डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड डेल्टा जी, यानी कि इट इज अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी, सो राइट। सो डेल्टा जी एंड टी वाला जो ग्राफ होता है ये एलिंगम डायग्राम से रिप्रेजेंट, इसको इस रिलेशन को, इनके रिलेशंस को आपस में पढ़ा जाता है एलिंगम डायग्राम से। ओके भाई साहब, ये क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें बताऊं ऑर्गेनिक के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, 99% फ्रेम किए हुए क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं ऐसे सेम क्लास में, और वो भी ऐसा नहीं कि सदियों पहले पढ़े हों। दिस वी हैव रिवाइज जस्ट फ्यू डेज बैक, सो गलत होने का तो चांस ही नहीं। जो द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फिंकल स्टीम रिएक्शन विद NaI विद बाया SN2, बताया था ना, sp2 वाले कार्बन पे, sp2 वाले कार्बन पे और बल्कि कार्बन पे, ये दो जगह SN2 नहीं होती। तो यानी कि अब यहाँ बल्कि तो कुछ दिख नहीं रहा, बेंजीन रिंग को बल्कि मत समझ लेना यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ बल्कि तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर क्या दिक्कत है कि देखो ये sp3 कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये जिससे ब्रोमीन जुड़ा है ये sp2 है, ये वाला भी कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है वो sp2 है, और ये वाला sp3 है। तो ये वाले तो दोनों दे देंगे, फोर्थ और फर्स्ट, लेकिन सेकंड और थर्ड नहीं दे पाएंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड आपके आंसर हो जाएंगे। और रीजन मैंने, we have discussed the reason for the same because there are various reasons through which you can understand, but one reason, actual reason through molecular orbital picture says that your, you know, in the SN2 interaction, the type of orbital that is actually interacting is the donor orbital of the nucleophile and the acceptor orbital of this bromide CBr bond, right? Now, as long as the CBr bond, the carbon is sp3, you are donating in sigma star that has a matching orbital symmetry with the donor nucleophiles orbital. But as long as you have a pi bond, means a sp2 hybrid carbon, and you are going to have a SN2 there, so you have a pi star orbital. Pi star doesn't have a matching symmetry with the that of the donor orbital symmetry, right? So that is why it is not feasible to have SN2 at the pi bond. Clear? बट उतने डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट तो बताया ही था, है ना। तो क्लियर इसका सेकंड और थर्ड आ जाएगा। अब आता ये, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सिंथेसाइजिंग एन प्रोपाइल बेंजीन। पहली बात तो देखो एन प्रोपाइल बेंजीन किस में मिलेगी। देखो सबसे पहले ये वाला है, सबसे पहले एसाइलेशन कराया है, एसाइलेशन करा के CO ये बन जाएगा पूरा। आपको पता है एसाइलेशन में यही होता है, एनहाइड्रस ClCl3 क्लोरीन को लेके जाएगा, यहाँ केटायन बनाएगा, ये केटायन फिर ये एल्कीन यहाँ पर इस केटायन पे अटैक करेगा, और फिर बाद में उसको एरोमेटिसिटी वापस मिल जाएगी, क्योंकि AlCl4 माइनस में जो Cl माइनस आएगा वो फिर प्रोटॉन ले जाएगा। तो आपको ये पता ही ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। अब इसमें आपने क्या कर दिया, ये रिडक्शन कर दिया आपने, वुल्फ किश्नरी तो बोलते हैं इसको जहां तक मेरा ध्यान है, ये वुल्फ किश्नर ही तो है शायद, जहां तक मेरा ध्यान है। तो ये आपका रिडक्शन करने पर आपका यहाँ से CO गायब हो जाएगा और H लग जाएंगे यहाँ पे, तो CH2 बन जाएगा, तो ये एन प्रोपाइल बन गया, एन प्रोपाइल बेंजीन बन गया। यहाँ पर भी देखो SN2 पाथवे से अगर ये क्लोरीन देखो, एनहाइड्रस ClCl3 क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको देगा, और इसका जो ये CCl का सिग्मा स्टार है, इस सिग्मा स्टार पे पाई अटैक करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट ये बन जाएगा, क्योंकि आपने इस बॉन्ड पे अटैक मारा है, और उसके बाद आपका ये स्केलेटन इस तरह से मिलेगा आपको एलिमिनेशन वगैरह के बाद, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी, पहले OH का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करके प्रोटोनेट हो जाएगा,
अब क्या होगा, इसका सिग्मा स्टार लो लाइन हो जाएगा और इस लो लाइन सिग्मा स्टार पे पाई अटैक कर देगा, OH2 बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से भी SN2 के पाथवे से आपको क्या मिल गया, आपको एन प्रोपाइल बेंजीन मिल गई। और यहाँ पर देखो, यहाँ पंखा है, यहाँ तो मिलेगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, देखो पाई बॉन्ड ये वाला H प्लस पे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। जब आपके पास मोर न्यूक्लियोफिलिक H न्यूक्लियोफाइल रखा हो, मोर न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड रखा हो, ये पाई यहाँ अटैक करेगा। अब आपको पता है प्रोटोनेट तो टर्मिनल पे ही होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा, और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री जब बन जाएगा तो ये पाई यहाँ अटैक करेगा। तो आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगी, ना कि नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। तो यहाँ पर आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगी। ये तो आपको चाहिए ही नहीं, तो ये तो काट ही दो। अब इन तीनों में एफिशिएंट बताना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको सिग्मा स्टार में डोनेट कराना है, यहाँ पर भी आपको सिग्मा स्टार में डोनेट कराना है, वहां आपको पाई स्टार में डोनेट कराना है क्योंकि कार्बोनिल का पाई रिएक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि अगर मैं पाई से एनर्जी गैप की बात करूं, पाई स्टार की, वो हमेशा कम होगा किससे, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार से। समझ में आ रहा है, तो सिग्मा स्टार से तो कम ही रहता है ना पाई स्टार पे एनर्जी का ट्रांसफर। तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये वाली एनर्जी फास्ट रहेगी क्योंकि आपका एनर्जी फास्ट नहीं, रिएक्शन फास्ट रहेगी, बिकॉज आपकी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो कम है। तो और वैसे भी यार देसी भाषा में कहूँ तो आपको पता है ना, एसाइल क्लोराइड तो वैसे भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो लपक के पाई बॉन्ड लेगा बेंजीन का, है ना। तो रिएक्शन यही सबसे बेस्ट वे है आपका इसका प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी देखो सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कितनी बार प्रैक्टिस किया था, 2-2 घंटे की क्लास ली, कायरलिटी पूरी समझाई। अब मुझे लग रहा है वर्थ इट था, वर्थ इट था तुम्हारा रात तक जाग के देर देर तक लेक्चर अटेंड करना। जिस बच्चे ने भी लेक्चर ढंग से अटेंड किया है ना भाई, ऑर्गेनिक में उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कायरल कंपाउंड, बताया था इस टाइप का सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के। यहाँ देखो इस कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ गए, CIP फेल हो गया, नहीं है ये कायरल सेंटर ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये दो अलग हैं, पर बेंजीन वाली जो रिंग है ये दोनों साइड से सेम पड़ रही है। आप लेफ्ट रिंग को रोटेट करो चाहे राइट चलो, आपको बराबर पॉइंट पे बराबर बराबर एटम्स मिल रहे हैं, तो ये पूरा सिमेट्रिकल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों साइड से बराबर पड़ेगा, तो ये कार्बन भी एसिमेट्रिकल हो गया, यानी कि ये तो है नहीं। अब ये देखो यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, HNH2, विनाइलिक और मिथाइल, तो ये वाला आपका हो गया। अब यहाँ देखो आपका थर्ड, यहाँ पर भी एक मिथाइल लगा है एक विनाइल लगा है, पर ये वाली फिर से सिमेट्रिकल साइड पड़ गई, इधर से जाओगे तो भी बराबर और इधर से जाओगे तो भी बराबर, तो दोनों ग्रुप बराबर पड़ेंगे, CIP फेल हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं है। तो जब थर्ड है ही नहीं, फर्स्ट है ही नहीं, तो फर्स्ट है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड है तो ये भी नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर तो वैसे ही निकल गया, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। पर देखना है देख लो, एक OH लगा है एक H लगा है एक, अब यहाँ पर एक तरफ से रिंग पे चलोगे तो CH2 है, और इस तरफ से रिंग में चलोगे तो CH है, तो यानी कि ये तो डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे तो CIP चेंज हो जाएगा, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये और ये आपका सेकंड और फोर्थ आपके कायरल हो गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट लिखा है इन RNA, तो RNA और DNA, ये हमने, ये तो तुमने सबने पढ़ा हुआ है यार। RNA में कौन सा होता है, DNA में कौन सा होता है, DNA में होता है AGCT, और यहाँ पर कौन सा होता है AGCU, यही तो होते हैं ना, एज फार एज आई रिमेम्बर। एक मिनट होगा बस, एक वाईफाई से पहले डिस्टर्ब हो, चेक कर लेता हूँ अभी कितना टाइम है। हाँ ठीक है, तो AGCU होते हैं RNA में और AGCT होते हैं DNA में, यानी कि यहाँ पर T नहीं होता और यहाँ पर U नहीं होता RNA में और DNA में। अब उसने पूछा है RNA का, तो ये नहीं होता आपका थाइमीन, थाइमीन नहीं होता। थाइमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, थाइमीन का स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर आपको थोड़े बहुत तो याद रखने पड़ेंगे, देखो इसमें वो तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये आपका थाइमीन होता है, ये थाइमीन होता है, तो ये आपका DNA में RNA में प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो यहाँ पे एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, इन हायर लेवल्स दे कैन आस्क सच क्वेश्चन दैट इफ यू नो द थाइमीन which is this one, right? You have this is your thymine, right? As far as I'm right, yeah, this is your
thymine. And uracil has a slight change. Uracil is this. ये बोनस क्वेश्चन है. फर्क सिर्फ इस मिथाइल ग्रुप का है जो कि 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे लगा है. ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे लगा है. ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन पे अगर ये लगा है मिथाइल, तो इसको ना आईयूपीएसी में 4 मिथाइल यूरासिल भी बोलते हैं. ये है बढ़िया बात. और ये यूरासिल होता है. तो अगर वो कल को तुमसे क्वेश्चन में पूछ ले, बच्चे आगे जाके और भी क्वेश्चंस करेंगे, कंपटीशन देंगे, सो दे मे आस्क यू दैट वेदर दिस 4 मिथाइल यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए. सो तुम तो कहोगे आरएनए में तो सर एजीसीयू प्रेजेंट होता है. देखो एजीसीयू प्रेजेंट होता है तो तुम कहोगे यूरासिल तो प्रेजेंट होता है, तो तुम लिख के आ जाओगे यस प्रेजेंट होता है. नहीं, यूरासिल नहीं है ये. 4 मिथाइल यूरासिल थायामीन को ही बोलते हैं. तो थायामीन तो नहीं होता ना आरएनए में. सेम डीएनए के साथ भी क्रॉस लिंक करके पूछ सकता है. तो ये अच्छी चीज है, याद रखना भाई. एरोमेटिसिटी का लास्ट वन शॉट में भी बताया था और यही सारे एग्जांपल डिस्कस हुए थे. इससे ज्यादा एड क्या ही हो सकती है ना. तो विच अमंग्स द फॉलोइंग आर एरोमेटिक. इतने सारे गैसेस तो मेरे अपनी जिंदगी में खुद के एग्जाम्स में नहीं लगे जितने तुम्हारे वाले में लग गए. विच अमंग्स द फॉलोइंग आर एरोमेटिक. ये एरोमेटिक है, सिर्फ पता चल रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरा साइक्लाइजेशन है. ये भी पूरा एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लाइजेशन पूरा है, क्योंकि यहाँ पर sp2 आयोडाइड कार्बन है जो एमटीपी ऑर्बिटल से कॉन्जुगेशन कंटिन्यू करवा सकता है, जो कि मैंने बताया था कि रिंग में कहीं बोरोन हो, रिंग में कहीं आपका कार्बन पे प्लस चार्ज हो, ये सारे जो होते हैं कार्बोकेटायन हो गए, बोरोन हो गया, एमटीपी ऑर्बिटल वाले, ये सब कॉन्जुगेशन को आपका फैसिलिटेट कराते हैं. तो ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हो गया. ये आपका आपको दिखाई दे रहा है ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है. वैसे भी तो एरोमेटिक तो होने से रहा, वैसे तो ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं होता, बताया था नॉन एरोमेटिक होता है. जितने भी 7 से ऊपर या 7 वाले जो होते हैं वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होते. वो अपनी रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से नॉन एरोमेटिक रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वी नो एंटी एरोमेटिक से ज्यादा अच्छी नॉन एरोमेटिक एनर्जी वाइज, राइट. लेस एनर्जी की होती है, स्टेबल होती है. और ये आपका दिख रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया. तो यानी कि सीधा सीधा फर्स्ट और सेकंड आपके एरोमेटिक. ठीक है. Why it is harder to compare liquids and solid relative to gases. सबको पता है यार, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं टू ईच अदर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, राइट, एज कम्पेयर टू गैसेस. सो सीधी सी बात है, यही सही आंसर. इसमें तो मुझे कुछ कराने की जरूरत है भी नहीं यार, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा. ठीक है. बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन. एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो कहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आ गया भाई बीच में. एटम थोड़ी ना चेंज हो रहा है. एज लॉन्ग एज योर एटम इज फिक्स्ड, राइट, योर न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, राइट. सो उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. तो ये पॉइंट तो वैसे ही गलत हो गया, राइट. चलो, क्वेश्चन 12. Related to the Frunlich adsorption isotherm, which one of the following is not correct. सबको पता है कि जो Frunlich adsorption isotherm होता है वो नॉर्मल या जो है एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर के लिए काम करता है. लिमिटेड स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर के लिए काम करता है. ऐसे ग्राफ बनाते हो ना, एक्स बाई एम जो होता है जिसे बोलते हैं आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद प्रेशर. वो ग्राफ ऐसा था अकॉर्डिंग टू फ्रंटलिज. बट प्रैक्टिकल ग्राफ हाई प्रेशर पर जाकर बेंड हो जाता है. तो वो कह रहा था कि बस यहीं तक फॉलो हो रहा है डायरेक्ट रिलेशन मेरा, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ. तो बस यही उसका ड्रॉबैक था. ठीक है. तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट. बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है. एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी जिसने पढ़ी होगी छाप देगा बढ़िया से. अब देखो ये, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. CH4 गैस है, टूट रहा है कार्बन में और हाइड्रोजन. डेल्टा एच एटोमाइजेशन दे रखा है 1665, स्टैंडर्ड है ऑब्वियसली, किलो जूल पर. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. अब देखो यहाँ पर क्या है, उल्टा चलते हैं. मीन CH बॉन्ड एंथैल्पीज डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड. ये तो निश्चित रूप से तय है, क्योंकि अगर CH4 के मैं CH बॉन्ड की बात करूं उसका एनवायरमेंट अलग है, और CHO के अगर मैं CH बॉन्ड की बात करूं उसका एनवायरमेंट अलग है. एनवायरमेंट अलग होने पर आपकी बॉन्ड एनर्जीज डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है. तो ये पॉइंट तो सही है. उसके बाद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंडिविजुअल CH बॉन्ड इन सक्सेसिव स्टेप इज डिफरेंट. ये तो होना ही है कि जब CH3H में एक H तोड़ दोगे और आप CH3 और H को अलग अलग कर दोगे, पहले तो CH4 से एक हाइड्रोजन गया, अब CH3 में से एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर CH2 में से एक हाइड्रोजन जाएगा. तो आपका आप
क्या कर रहे हो आप, एक न्यूक्लियस को, जो सेंटर में जो कार्बन है उसको आप चेंज कर रहे हो, उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हो, तो उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज रिपल्सिव प्रॉपर्टीज में चेंज आने की वजह से हर बार जब आप एक सी एच बॉन्ड तोड़ोगे कंजिक्यूटिव, तो आपको ज्यादा या कम एनर्जी देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का सिस्टम अब आपने बना दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है। उसके बाद ऑल फोर सी एच बॉन्ड्स इन सी एच फोर आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड एनर्जी, ये तोड़ने से पहले पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट तोड़ने से पहले कि सी एच फोर है, सी एच फोर में तो चारों पॉइंट जो बॉन्ड्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन प्योर sp3 है, सारे सेम एटम्स हैं, तो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड लेंथ होगा, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हर एक बॉन्ड का परफेक्ट sp3 है। तो ये पॉइंट। अब आता है डेल्टा एच ए नॉट जो दिया है 1665 इज द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ सी एच बॉन्ड, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मीन बॉन्ड एंथैल्पी होता है एक बॉन्ड की एनर्जी, 1665 जो है वो चार बॉन्ड की एनर्जी है, पूरे सी एच फोर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, यानी चार सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी 1665 है, एक की निकालनी होगी तो 1665 को डिवाइड करना पड़ेगा चार से, एंड यू हैव टू डिवाइड 1665 with 4, that's how you are going to get bond enthalpy mean of a CH bond. So this is the incorrect statement. Okay, now moving to the next question. Two solution X and Y. X is a solution of hexene and benzene. Y is a solution of water and HCl. What type of deviations from Raoult's law these will show basically? So पता है हेक्सेन और बेंजीन पहले भी नॉन पोलर, बाद में मिक्स करने के भी नॉन पोलर, कोई डेविएशन शो नहीं करेंगे क्योंकि कोई इंट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप नहीं हो रही, ना खत्म हो रही है। जैसे पहले नॉन पोलर थे वैसे ही बाद में मिक्स करने के बाद भी आपस में भी नॉन पोलर है। वाटर और HCl में पंगा है, वाटर और HCl को मिक्स करने के बाद उनमें अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर और HCl मिक्स जब मिक्सचर होता है तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू फोर्सेस, जिसकी वजह से उनका इवेपोरेशन कम हो जाता है, यानी कि उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है मिक्सचर में, यानी कि इंडिविजुअली वाटर और HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि कम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टीम बनेगी। लेकिन जब मिक्स कर दोगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, अब कम उड़ेंगे, है ना, कम हवा में उड़ेंगे, और हवा में कम उड़ेंगे इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड से कम हो गया, यानी कि राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन ए इसका, नो डेविएशन फॉर एक्स एंड नेगेटिव डेविएशन फॉर वाई। लास्ट क्वेश्चन, इन aqueous solution the hydronium ion gets further hydrated to which of the following species? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। H3O पॉजिटिव अगर तुम्हारे पास है और तुम क्या ही बनाओगे इसके साथ, एक एक वाटर को फिर से जोड़ दो, वाटर के बॉन्डिंग करा दो इसकी इस तरह से। अगर तुम इसकी बॉन्डिंग करा देते हो, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही है ना, तो इस तरह से अगर तुम हाइड्रोजन बॉन्ड से बना भी दो तो क्या बनेगा तुम्हारा, यही तो बनेगा H9O4 पॉजिटिव। क्लियर हो गया, जिसने पढ़ा होगा उसको तो डायरेक्टली पता होगा, जिसको नहीं भी पता होगा समझ में आएगा। तुम में से कोई कहे सर जरूरी थोड़ी है कि तीनों हाइड्रोजन करें, ये भी तो हो सकता है ये वाला ना करे, हाँ तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, तब भी तुम्हारा फॉर्मूला जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ये शर्त की बात है, तुम चाहे करके देख लो, एक लगा के देख लो, चाहे तुम H2O एक्स्ट्रा, तो भी तुम्हारा इनमें से कोई सही आंसर नहीं होगा, दो लगा लो चाहे तीन लगा लो, आंसर सही है ये इसमें। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा टेस्ट 2023। I guess we have covered all the questions, right? 13, 14, 12, 11, 10, and then your 9, then 8, then 7, then 6, 5, 4, 3, and so I guess the solutions are clear to you. One thing which I want to say that in this slide all the answers are option A. This was actually given as such in the IIT's official website, and they have mentioned it that whatever PDF you are downloading, the answer is itself the first option of every question, right? So, and the other thing is, question was very easy, level was very easy, and I guess it must not have taken your more than 15 minutes to 25 minutes to solve this entire paper, okay? Because there was no numerical, no equilibrium numerical, nothing, like you were trying so hard in numericals, and there is not single numerical that you can use your pen for, right? So it was a nice paper, and probably the cutoff is going to be high for individual chemistry section, because this is a very easy paper. uh, Only if you don't have done any silly mistakes, I guess that you must have all done good. My well wishings for the result of this particular exam and for the
upcoming exam of NEST, which is I guess probably on 24th. So all the best for that, and that's all for the day. Signing off. जय हिंद जय भारत और बस मजे करो. ठीक है, बाय. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.